हाय एवरीवन, माय नेम इज़ इमदादुल हक। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर indicating high weightage mark in IIT JEE mean and advanced NEET and board exam as well. Okay, so the chapter name is electrochemistry, right? So first हम इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर के नाम पे ये सजेस्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। दैट मीन्स हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज converting into electrical energy. Okay, so now actually electrochemistry deals with the electrochemistry deals with the study of electrical properties, study of electrical properties of solution of electrolytes and the inner relation of chemical phenomenon and electrical energies बेसिकली होता क्या है इसमें, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए रिएक्शंस। एक्चुअली इस चैप्टर को समझने के लिए रेडॉक्स कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। बेसिकली हियर some spontaneous reactions will be there. When the reactions is proceed on, then they will their chemical energy is used to convert into electrical energy, right? So इस चैप्टर में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। एक्चुअली इट्स द डिवाइस ऑफ इंटर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, राइट? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स इट्स अ डिवाइस फॉर इंटर कन्वर्टिंग, it's a device for interconverting chemical energy into electrical energy or vice versa, right? Basically electrochemical cells are of two types. Types of electrochemical cell, types of electrochemical cells। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 जिसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल।
गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ हम इन दोनों सेल में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट कि जो गैल्वेनिक सेल होता है और वोल्टेक सेल होता है, इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। दैट मीन्स इट कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy. On the other hand, in case of electrolytic cell, इसका उल्टा किया जाता है. That means it converts electrical energy into chemical energy. It converts electrical energy into chemical energy. देखो, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है इस चैप्टर के आगे आगे आपको पता चल जाएगा. दैट मीन्स यू विल ग्रेजुअली नो दैट हाउ एक्चुअली केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी via galvanic cell or voltaic cells, and how actually electrical energy is converting into chemical energy with the help of one kind of cell that is known as electrolytic cell. The second point is that इसमें जो galvanic cell में क्या होता है कि electrical flows due to occurrence of a spontaneous reaction in the cell. That means cell के अंदर अगर spontaneous reactions हो रहा है, spontaneous reaction cell in the sense that the reactions are occur by their own, right, after proper initiations. That means here electrical flows due to occurrence of a spontaneous reaction in the cell. On the other hand, in case of electrolytic cell, a non-spontaneous reaction is actually carried out by supplying current from an external battery or external source, right? So a non-spontaneous reaction is carried out by supplying current from an external battery, okay. So the third point is that here you have to be remembered that in a cell two polarity is there. One is called anode, another one is cathode, right? In case of galvanic cell, mark my word, anode is a negative terminals actually, and in negative part of the battery, actually here oxidation reaction takes place here. And in case of cathode, the polarity sign of the cathode is positive actually, okay. Here in case of cathode, it's a positive terminal, and in cathode always reduction reaction takes place, right? But on the other hand, in case of electrolytic cell, anode is a positive terminal. एनोड क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ऑब्वियसली एनोड जहाँ भी होगा उधर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है. दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर. एंड कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है,
reaction is same, that is reduction reactions takes place होता है इधर. You will get to know that how actually anode is a negative terminals in case of galvanic or voltaic cells, and whereas in case of electrolytic cells anode is a positive terminals one, right? But the reactions nature is same. That means in case of anode always oxidation reactions takes place, and whereas in case of cathode always reduction reactions takes place, right? So हम बारीकी से one डिस्कस करेंगे. The first cell I'm going to discuss in details. That one is galvanic cell or voltaic cell. Galvanic cell or voltaic cell. Okay. So जो गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टाइक सेल का सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है उसको हम डेनियल सेल कहते हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल इज डेनियल सेल. देखो डेनियल सेल में होता क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है. वन इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ जिंक एंड another electrode is made up of copper. The anode which is made up of zinc is anode, and which is made up of cathode is known as that one is cathode, right? So basically here two types of electrodes are there. One is made up of zinc. As you know that zinc is more electropositive elements. What is it? It's more electropositive elements. More positive element, right? So what does it mean actually? That means इसका मतलब क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होता है ना वो ज़्यादा होगा. दैट मीन्स इट हैज़ द मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी. इट हैज़ द मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी. दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का मतलब इजीली लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इजीली टेक्स प्लेस होता है. एज वी नो दैट इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन व्हाट हैपन एक्चुअली एलिमेंट्स विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स हेयर ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन इज इजी एक्चुअली. हेयर ऑक्सीडेशन इज easy here, right? And another one is copper, right? And if you compare the electropositive character between zinc and copper, obviously copper is a less electropositive element. It is the less electropositive element, right? Less electropositive element का क्या मतलब है? That means it has more electron gain tendency. Electron gain tendency is more. Electron gain tendency is more. That means किसी भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है. दैट मीन्स हेयर रिडक्शन इज इजी. रिडक्शन इज इजी. नाउ हम एक सेल बनाएंगे. एक्चुअली गैल्वेनिक सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स, दैट इज एनोडिक एंड कैथोडिक वन. The cell reaction of is redox kind, right? Oxidation takes place at anode and reduction at cathode. It may be represented by the Daniell cell, which is type of galvanic cells. As I told, zinc rod is immersed in Jadan sulfate, behaves as an anode, and copper rod immersed in copper sulfate behaves as cathode. Career Consultants. Sorry for interruption. Listen, actually हम अभी Daniell cell के कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं. जैसे कि हम बताया कि जो डेनियल सेल में होता है वो क्या होता है कि एनोडिक पार्ट जो होता है वो जिंक का रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इमर्स किया जाता है, और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस के सॉल्यूशंस पे इमर्स किया जाता है. जैसे कि हम दो डब्बल ले लेते हैं, एक बीकार बनाते हैं ये, जिसमें इधर क्या है, सपोज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, ZnSO4 है, और इधर हम एक जिंक का इलेक्ट्रोड है. दैट मीन्स जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है, दैट मीन्स इधर Zn है ना, दैट मीन्स Zn का इधर एक इलेक्ट्रोड ले लेंगे, इसको इमर्स करेंगे
जिंक सल्फाइड में। ओके, मीन्स ये जिंक इलेक्ट्रोड है। ये जिंक है। ओके, नाउ एक्चुअली व्हाट हैपन हियर, ये एनोड टर्मिनल है। एनोड दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल। ओके, and one more terminal is required, supposed to be this one. I'm going to draw here. Wait, इसमें जो हम सल्फेट लेंगे, इसमें कॉपर सल्फेट होता है, COSO4, राइट। और इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड डिपॉजिट किया, दैट मीन्स इमर्स्ड किया जाता है, सपोज टू बी दिस वन। अरे वेट, ओके, नाउ व्हाट हैपन एक्चुअली, इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का बना हुआ है, सॉरी, ये कॉपर का बना हुआ है, राइट। और ये जो सॉल्यूशन लिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट बोले तो दैट मीन्स कोई भी केमिकल स्पीशी हो जिसमें वाटर में डिजोल्व करने के बाद उसके आयन में टूट जाए, तो वो टूटे हुए मतलब आयन्स जो सॉल्यूशंस बनाते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, राइट। एंड इन दिस सॉल्यूशंस ऑब्वियसली हियर Zn2+ is there, Zn2+ is there, and here also copper 2+ is there, copper 2+ is there, right. This is the this one is the कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, राइट। ओके, नाउ इन दो सॉल्यूशंस को अभी एक एमीटर के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, एक वायर के थ्रू, राइट। दैट मीन्स इसको हम अगर कनेक्ट करें एक एमीटर के थ्रू तो इधर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जो Zn है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसमें जिंक है। जो जिंक क्या कर रहा है एक्चुअली, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये सॉल्यूशन में जा रहा है Zn2+, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू इधर फ्लो होंगे, राइट, इधर फ्लो होंगे। और फ्लो होने के बाद क्या होगा कि इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, दैट मीन्स इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, राइट। तो दैट मीन्स करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दैट मीन्स हियर कैथोड एंड हियर एनोड, राइट। एनोड क्या है, इसमें जिंक है, और कैथोड क्या है, इसमें कॉपर है, राइट। ओके, नाउ सो दिस वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल सर्किट ऑफ सेल, एक्सटर्नल सर्किट ऑफ सेल। और जो इस कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन में CO2+ है वो आते हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ना इधर डिपॉजिट हो जाएगा, दैट मीन्स ये वाला ये फेड ऑफ हो जाएगा थोड़ा बहुत, और ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होने लगेगा, राइट। द प्रॉब्लम इज दैट हियर actually the cell is not completed, right, because listen what happen actually, ये जो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये कुछ ही देरों में बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें अगर Zn2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशंस पे जा रहा है, तो इसमें एक टाइम आएगा जब पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा, समझ रहे हो। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को रोक लेगा तो इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं होगा तो सर्किट में क्या नहीं होगा, कोई करंट फॉलो नहीं होगा। दैट मीन्स ये जो एमीटर लगा हुआ है इधर, ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ये अपने न्यूट्रल पे रहेगा। सो इस सॉल्यूशंस को रिमूव करने के लिए हम एक सॉल्ट ब्रिज को इधर कनेक्ट करते हैं। कौन सा ब्रिज? जिसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज करते क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, यू विल गेट टू नो, जस्ट वेट फॉर टाइम। ओके, नाउ इधर क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज को
अटैच कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहा है कहाँ से कहाँ, एनोड से कैथोड, वो रुके ना, राइट। तो ये क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज के अंदर बढ़ा जाता है। क्या बढ़ा जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा जाता है, राइट। जो होता है सपोज टू बी KCl, KNO3, ammonium chloride, and suppose NH4, NO3। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड इधर बढ़ा जाता है जो अगर अगर सोल्यूशन होता है, यू विल गेट टू नो लेटर, राइट। जो इसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। जो सर्किट का क्या करते हैं, इंटरनल जो सर्किट होता है ना उसको कंप्लीट करता है। दैट मीन्स इसको सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। यू टाइप का इन्वर्टेड यू टाइप का शेप होता है सॉल्ट ब्रिज, राइट। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। सेल में इंटरनल सर्किट कंप्लीट करता है, राइट। नाउ तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि स्टूडेंट्स, दैट मीन्स यू पीपल विल फॉरगेट दैट व्हिच वन इज एनोड एंड व्हिच वन इज कैथोड। सो फॉर दैट वन ट्रिक इज देयर, यू शुड रिमेंबर दैट फॉर इन केस ऑफ Daniell cell or galvanic cells, you have to remember one word, LOAN, lone. That means L stands for left, O stands for oxidation, A stands for anode और N stands for नेगेटिव। दैट मीन्स गैल्वेनिक सेल में जो लेफ्ट में रहेगा हमेशा उधर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिधर भी मतलब हो रहा है वो एनोड होगा, और एनोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल्स होता है इन केस ऑफ Daniell cell और व्हाट इज इट कॉल्ड, वोल्टाइक सेल्स, राइट। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल्स ऑफ Daniell cell, गैल्वेनिक सेल इज Daniell cells, राइट। सो ये कौन सा सेल है, ये Daniell cell का कंस्ट्रक्शन है, Daniell cell का। नाउ इस सेल में हो क्या रहा है, हम बारीकी से वन पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट एनोड में क्या हो रहा है, एट एनोड ऑब्वियसली एनोड में क्या होगा, एज आई टोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा, राइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोले तो दैट मीन्स Zn है, Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशंस में एंटर करेगा, राइट। दैट मीन्स हेयर ZnS will lose its 2 electrons to forming ion, that is Zn aqueous plus 2 electrons। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल से ये है कि जो एट एनोड जिंक विल डिजॉल्व, एक्चुअली एट एनोड जिंक विल डिजॉल्व, जिंक विल डिजॉल्व, राइट। सो now in case of cathode what happen actually, at cathode as I told that कैथोड में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शंस होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल्स। ऑब्वियसली हम इधर क्या डिस्कस कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल डिस्कस कर रहे हैं, तो इधर तो कन्फर्म ये क्या होगा, दैट मीन्स रिडक्शन रिएक्शंस होगा। और एनोडिक कंपार्टमेंट में कौन इलेक्ट्रोड था, कॉपर इलेक्ट्रोड था, राइट। सो कॉपर का जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में देखो, इधर जो कॉपर पड़ा हुआ है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में दैट मीन्स डिपॉजिट हो जाएगा। दैट मीन्स कॉपर 2+ aqueous which will accept 2 electrons to get deposited into copper solid in the copper electrode, right। so basically इधर हो क्या रहा है एट एनोड में, एनोड में ये हो रहा है कि एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर लूज किया है, कौन, जिंक, दिस इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर्ड टू कैथोड बाय वायर, राइट। दिस इलेक्ट्रॉन will transferred to cathode via wire, right now। एंड वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कॉपर सॉल्यूशन में जो 2+ है
जो कॉपर सल्फेट से आया हुआ है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर इलेक्ट्रोड में चिपक जाएगा. दैट मीन्स हियर व्हाट हैपन एट कैथोड कॉपर विल डिपॉजिट इट. एट कैथोड कॉपर विल डिपॉजिट इट. राइट. ओके. नाउ इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नेट इलेक्ट्रॉन चेंज है वो कितना है. नेट इलेक्ट्रॉन चेंज ऑब्वियसली इसमें 2 होगा. यू पीपल हैव टू रिमेंबर दैट वन. व्हाट इज इट. नेट इलेक्ट्रॉन चेंज. नेट इलेक्ट्रॉन चेंज कितना होगा. 2 होता है. राइट. ओके. ओके. नाउ ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा. इफ यू ऐड दैट वन देन यू विल गेट द नेट शेल रिएक्शन. नेट शेल रिएक्शन क्या होगा. इसमें Zn रहेगा सॉलिड में प्लस कॉपर 2 प्लस विच इज इन एक्वस टू गिव Zn2 प्लस एक्वस एंड कॉपर सॉलिड. राइट. सो एनोड में क्या हो रहा है. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहा है जिसमें Zn सॉलिड Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा और कॉपर 2 प्लस कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा और ये है डेनियल शेल का नेट शेल रिएक्शंस. ना हम जानेंगे कि इधर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लगा हुआ है जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं. इसका फंक्शंस क्या है. वाई नीड टू फिक्स्ड और इनपुट द सॉल्ट ब्रिज इन द डेनियल शेल एक्चुअली. सो सॉल्ट ब्रिज होता क्या है. इट्स ए इन्वर्टेड यू टाइप डिवाइस. सॉल्ट ब्रिज देखो इट्स ए लाइक इन्वर्टेड यू टाइप एक मतलब डिवाइस है जो इंसर्ट किया जाता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एनोड एंड कैथोड में जो जोड़ा जाता है. राइट. ब्रिज का काम करता है ना. हम इसको जानेंगे इसकी फंक्शन. इसका फंक्शन क्या है. दैट मीन्स सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन डेनियल शेल के अंदर क्या है एक्चुअली. सी हियर एक्चुअली inside the salt what happen actually jelly like paste of inert electrolyte or agar solution or gelatin is imported actually. Right. Jelly like paste of inert electrolyte in अगर और गिलेटिन पेस्ट की तरह होता है जो उधर रहता है. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली होता क्या है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ठीक है. तो हम अभी फंक्शन के बारे में जानेंगे. व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. पूछा जाता है ये क्वेश्चन. फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. The first thing that it completes the internal circuit of the cell. It completes the internal circuit of the cell. Right. Number 2, it maintains the electrical neutrality. It maintains the electrical neutrality of the two electrolytic solution. Of the two electrolytic solution. एक्चुअली देखो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है. क्यों. जैसे कि हमने बोला इधर कि देखो अगर सॉल्ट ब्रिज ना होता तो क्या होता. इसमें ये क्या है जिंक का रॉड है. राइट. इसमें से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक कहाँ जा रहा है सॉल्यूशंस पे जा रहा है. राइट. तो एक समय के बाद क्या होगा जैसे कि इधर Zn पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा. दैट मीन्स द Zn2+ आयन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशंस. दैट टाइम व्हाट विल हैपन एक्चुअली दे विल प्रिवेंट टू फॉलो द इलेक्ट्रॉन्स. एक्चुअली ये
प्रिवेंट्स करेगा कि इलेक्ट्रॉन कैथोड एनोड से कैथोड की तरफ ना जाए, राइट, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज के अंदर हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, राइट। तो इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहेगा सेल में। तो इसको मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से मतलब जडन इलेक्ट्रोड से जा रहा है, इसको मतलब कोई प्रिवेंट्स इस और ऑब्स्टाकल्स ना है इसके पाथ में, राइट। तो उसको रिलीज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल क्या करता है, मेंटेन करता है, राइट। ओके, द थर्ड पॉइंट which is very much important, it avoids intermixing of two electrolytic solutions. It avoids intermixing of two electrolytic solutions and minimize liquid junction potential ये क्या होता है, गिव मी कपल ऑफ मिनट। या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है, देखो, जैसे कि दो इलेक्ट्रोड को अगर एक ही बीकर में इमर्स्ड किया जाए और एक एसपीएम के थ्रू सेपरेटेड किया जाए, एसपीएम बोले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वेयर सॉल्वेंट मोलिकुल्स कैन बी पास्ड, राइट। नाउ लिसन, सपोज ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, राइट। ये क्या करता है, ऑब्वियसली जिंक इलेक्ट्रोड से क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के क्या होता है, सॉल्यूशंस मेंटेन करता है, राइट। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इधर इस टर्मिनल पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा। बट इन केस ऑफ कॉपर क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को अगर एक्सटर्नल वायर के थ्रू हम कनेक्ट करें, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, वो दो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में पड़ा हुआ कॉपर 2+ आयंस उसको एक्सेप्ट करके ना इधर फेड अप हो जाएगा, दैट मीन्स डिपॉजिटेड हो जाएगा। तो एज कंपेयर टू लाइक बिफोर, व्हाट विल हैपन, द पॉजिटिव चार्ज अमाउंट विल बी डिक्रीजेस, सो वी कैन से दैट द नेगेटिव चार्ज विल बी इंक्रीज इन द कॉपर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। सो ये जो देखो, इधर एक पोलैरिटी जनरेट हो रहा है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ऑब्वियसली इधर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसको हम कहते हैं एलपीजे लिक्विड जंक्शन, इट्स कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। दैट मीन्स लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है, सिंपल सी बात, द पोटेंशियल डिफरेंस generated at junction of the two electrolytic solution separated by SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। तो देखो, जब सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, हम लगाएंगे सेल के अंदर, तो क्या होगा, ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है ना, इसको रिड्यूस कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, क्योंकि इधर अगर सॉल्ट ब्रिज लगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि आयनिक कंपाउंड्स होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और नेगेटिव रहेगा। तो इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर से क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट होता है इनर्ट इलेक्ट्रॉन में, वो आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और ये नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज कर देगा, जो कि मिनिमाइज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो एंड द थर्ड पॉइंट इज you have to be remembered here, what is it, or you have to take note over here, that is properties of inert electrolyte. Properties of inert electrolyte. That effect of internal battery, on galvanic cell, and a representation of cell,
ऑफ सेल। बेसिकली हम ये चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। न्यू हेडिंग, मार्केस न्यू हेडिंग दैट कि हम इनर्ट इलेक्ट्रिक का क्या जानेंगे, प्रॉपर्टी जानेंगे। अगर दैट मीन्स गैल्वेनिक सेल में कोई एक्सटर्नल बैटरी यूज़ किया जाता है तो उसके वजह से क्या इफेक्ट होगा, हम ईएमएफ के बारे में जानेंगे। एंड सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो चीज़ें हम जानेंगे। द फर्स्ट थिंग, द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। properties of inert electrolyte। Listen, एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज में जो हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बढ़ रहा है और इनपुट कर रहा है उसका प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट both the ions should not participate in any of the reaction at anode or cathode, इसका मतलब क्या है, देखो बात सुनो। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉपर्टीज ये होना चाहिए, ये नेम इटसेल्फ सजेस्ट अस दैट मीन्स इट्स इनर्ट, दैट मीन्स इट विल नॉट रिएक्ट विथ एनी एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट्स, दैट मीन्स अगर ये रिएक्ट कर जाता है तो जिस सेल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो हम ऐसे इलेक्ट्रोड सॉल्ट ब्रिज के अंदर डालेंगे जो कि इनर्ट हो एंड both the ions should not participate in any of the reaction at anode or cathode. The first thing is that one. And second thing, this is very much important, that mobility of both the ions, mobility of both the ions of inert electrolyte should be same। ये मोबिलिटी क्या होता है, सेम होता है, राइट। देखो इसका मतलब क्या है, अगर मोबिलिटी दैट मीन्स स्पीड ऑफ आयंस अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम इधर आ जाएगा। देखो बच्चों, सपोज इधर एक हम इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, वेट, इधर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, सपोज टू बी KCl है, इधर K+ है और Cl- है, राइट। तो इसको हम लगाए क्यों, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, इसका काउंटर आयन आएगा इधर, और इसमें नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इनर्ट इलेक्ट्रोड से कौन आएगा, पोटेशियम आएगा। तो इन दोनों का स्पीड अगर सेम न रहा तो क्या होगा कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो हम मिनिमाइज करने के लिए बात कर रहे हैं वो होगा नहीं, क्योंकि एक आयन अगर सपोज 10 मिनट में पहुंच रहा है और एक 50 मिनट लगा रहा है तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, जो भी हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसका मोबिलिटी दैट मीन चलने का स्पीड ऑफ बोथ द कैटायंस एंड एनायंस शुड बी सेम, इट शुड नॉट बी लैक। दैट मीन्स सपोज इफ पोटेशियम इज ट्रेवलिंग लाइक और मूविंग इन ए like 10 seconds and chlorine will take 20 seconds, that means it will not the proper, that means that type of ions we are not going to insert inside the salt bridge, right? Hope I'm clearing your doubts, okay? Now बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल बैटरी इन वर्किंग ऑफ डेनियल सेल्स। दैट मीन्स डेनियल सेल कब काम करना बंद कर देगा, कब ये रिवर्स काम करेगा, कब ये नॉर्मल तरीके से काम करेगा, उसको हम मॉनिटरिंग करेंगे एक एक्सटर्नल बैटरी लगा के। समझ रहे हो, किसके ऊपर, जो हमने डेनियल सेल बनाया था उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल बैटरी लगा के थोड़ा थोड़ा वोल्टेज हम मैन्युअली जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम कंट्रोल करके क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि कब कितना मतलब अचार हो रहा है। अगर एक्सटर्नल दैट मीन्स वर्किंग, बेसिकली हम इधर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्किंग ऑफ ए डेनियल सेल्स, राइट। दैट मीन्स ओके, सेकंड पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, that is effect of an external battery, effect
of an external battery in working of Daniell cell, in working of Daniell cell. Okay. ओके, सपोज ये कैथोडिक जो डेनियल सेल का सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन है, ये जेडन सल्फेट है और एनोडिक कंपार्टमेंट है, दैट मीन्स एनोडिक टर्मिनल है, एनोड है, और ऑब्वियसली ये राइट में है तो ये कॉपर सल्फेट का होगा और ये कैथोड है, राइट. ओके, नो, एंड इसमें जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ये कॉपर का होगा, एंड एज यू नो the polarity of that one is a positive one, right? Yeah, cathode is a positive in case of Daniell cell, and here it is the negative sign, right? The negative signs of anodic part in galvanic cell is basically due to, why is it so? Because as I told, in case of Daniell cell what happened, Zn क्या करता है, इस जिंक इलेक्ट्रोड को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Zn2+ के रूप में कहा जाता है, सॉल्यूशंस पे चला जाता है, समझ रहे हो. तो इलेक्ट्रॉन का बाई कन्वेंशन चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसी को मतलब उसको रेफरेंस मान के इसको हम नेगेटिव कहते हैं, समझ रहे हो. ओके, नाउ ये जो हम अगर इसको कंप्लीट करें एक एमीटर के थ्रू, राइट, सपोज ये डिफ्लेक्शंस दिखाएगा, राइट, ये डिफ्लेक्शंस दिखाएगा. ओके, मतलब ये करंट का डायरेक्शंस होगा, राइट. ओके, नाउ हम करेंगे कि अभी ये जो सॉल्यूशंस है, इस सॉल्यूशंस को, दैट मीन्स इस सर्किट को एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देंगे, जिसका वोल्टेज हम मैन्युअली क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं. सपोज टू बी ये वाला हम एक बैटरी से कनेक्ट करने जा रहे हैं, समझ रहे हो. सपोज ये बैटरी है, ये वाला, दैट मीन्स कुछ रेजिस्टेंस है इसमें, ये है, और हम उसका ऑपोजिट टर्मिनल से जोड़ देंगे. ये नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे. ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, समझ रहे हो, ये नेगेटिव टर्मिनल है. और इसका जो वोल्ट होगा, दैट मीन्स वोल्टेज होगा, वो ई वोल्ट है, राइट. वट ओके, ई वोल्ट है, राइट. इसका जो वोल्टेज है वो मैन्युअली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. दैट मीन्स द वोल्टेज ऑफ एक्सटर्नल बैटरी इज इंक्रीज्ड स्लोली. हम क्या करेंगे, इसको स्लोली इंक्रीज करेंगे. देखो होगा क्या, इनिशियली सपोज दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है डेनियल सेल के अंदर, ये एक्सपेरिमेंटली पता किया गया. जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दोनों कैथोड एंड एनोड के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो ई सेल, व्हाट डू यू मीन बाय ई सेल, यू विल गेट टू नो इन अपकमिंग क्लास. वेट, दैट इज 1.1 वोल्ट, राइट. ये 1.1 वोल्ट होता है डिफरेंस, राइट. नो, करना क्या है, जब इसको कैसे पता चला, देखो हमको पहले पता नहीं है कि कितना वोल्ट है इस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन एनोड एंड कैथोड. तो करेंगे क्या, ये जो एक्सटर्नल बैटरी हम लगाया है इसमें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, दैट मीन्स मैन्युअली हम वेरी स्लोली क्या करेंगे, पोटेंशियल को हम बढ़ाएंगे, समझ रहे हो. बढ़ाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे कि ये जो एमीटर का डिफ्लेक्शंस देख रहा है ना, ये न्यूट्रल हो जाएगा. तो न्यूट्रल जब हो जाएगा ना, उसी पॉइंट में हम कितने वोल्टेज लगाए हैं उसको नोट कर लेंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये जो गिवन डेनियल सेल है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा. तो ऐसा देखा गया और ऐसा पाया गया कि ये जो करंट का फ्लो हो रहा है ना, वो स्टॉप हो जाता है एग्जैक्टली व्हेन द एक्सटर्नल वोल्टेज इज 1.1 वोल्ट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं, राइट. और व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग, आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स लेटर, विल वेट. सो देखो बच्चों, द फर्स्ट थिंग इज दैट इसमें हम अगर क्या करें, देखो स्लोली इंक्रीज करेंगे, क्या बोल रहे हैं हम, दैट मीन्स द वोल्टेज of external battery of external battery is increased slowly, कहने का मतलब यह है, देखो ये जो बैटरी का एक्सटर्नल वोल्टेज है ना, हम स्लोली इंक्रीज करेंगे. देखो बच्चों, एक पॉइंट आएगा, देखो 3 पॉइंट हम इधर डिस्कस करने जा रहे हैं. नंबर 1 पॉइंट इज दैट
जो एक्सटर्नल बैटरी हम लगाए हैं, राइट, जो एक्सटर्नल बैटरी हम लगाए, इफ़ एक्सटर्नल बैटरी का जो वोल्टेज है वो अगर 1.1 वोल्ट से कम होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात, देखो बात सुनो, तब भी क्या होगा? करंट जो होता है ना वो कैथोड से एनोड की तरह ही फ्लो करेगा, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है वो कितना है? 1.1 वोल्ट से कम है। तो क्या होगा? देन द सेल विल बी वर्किंग एज गैल्वेनिक सेल, राइट? इफ external voltage is less than 1.1 volt, that means then the cell will be working as galvanic cell, right? बोले तो that means what does it mean? Zinc will dissolve at anode, that means zinc will dissolve at anode and copper will be deposited at cathode. आई बात समझ में? ओके, नो, जो सेकंड कंडीशन है उसमें हम क्या करेंगे कि अगर एक्सटर्नल बैटरी अगर जो एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज है वो अगर 1.1 वोल्ट का बराबर हो, सेकंड पॉइंट, इफ ई एक्सटर्नल is equal to 1.1 volt, what will happen that time? Very much interesting. See, तो वही रुक जाएगा, दैट मीन्स एमीटर कोई डिफ्लेक्शंस नहीं दिखाएगा। दैट मीन्स अगर 1.1 वोल्ट हो तो सेल विल नॉट वर्क एंड सेल रिएक्शंस विल बी स्टॉप। दैट मीन्स सेल विल नॉट वर्क एंड सेल रिएक्शन विल बी स्टॉप एंड सेल रिएक्शन will be stop, right? Will be stop. Third point, if E external is greater than 1.1 volt, उस केस में क्या होगा? बहुत ही गजब का चीज़ होगा। इधर देखो, सिंपल सी बात, तो इसका पोलैरिटी ना भी चेंज हो जाएगा। देखो याद करो, दैट मीन्स इस एक्सटर्नल बैटरी का अगर वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है तो क्या होगा? इसका जो टर्मिनल था ना, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी ये जो रिएक्शन चलेगा ना तो एक्सटर्नल बैटरी के हिसाब से चलेगा, समझ रहे हो? तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है तो इसका एनोड चेंज होकर क्या होगा? दैट मीन्स साइन चेंज होकर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ के क्या होगा? पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? तो होगा क्या इसमें? द पोटेंशियल विल बी रिवर्स्ड. What will happen? The potential will be reversed. Right? And the cell will work as electrolytic cell. And the cell will be work as electrolytic cell. What I told, in case of electrolytic cell, obviously anode is a positive one and cathode is a negative one. This is how it will work, right? अगर सिंपल सी बात क्या सीखा है हम इधर, देखो समराइज करते हैं, सिंपल चीज़ हम समराइज कर देते हैं। देखो, इफेक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल बैटरी इन वर्किंग ऑफ डेनियल सेल क्या होता है? देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ई सेल होता है डेनियल सेल का, वो 1.1 वोल्ट होता है। जो हम एक्सटर्नल बैटरी लगाया है उसका अगर वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम रहा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहले भी जैसा कम कर रहा था अभी भी ऐसे ही कम करेगा। कहने का मतलब ये है, देन द सेल विल बी वर्किंग एज ए नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। इसका सिंपल सा मतलब ये है, दैट मीन जिंक विल डिजॉल्व एट कैथोड एंड कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट एनोड, राइट, कैथोड। इफ़ एक्सटर्नल इक्वल टू 1.1 वोल्ट होता है तो पूरा स्टॉप हो जाएगा, कोई रिएक्शंस नहीं होगा उस टाइम में। देखो इसको ही ईएमएफ कहा जाता है। दैट मीन्स जब सेल वर्क ही नहीं कर रहा है उस टाइम जो एक्सटर्नल बैटरी लगाया हुआ हो उसका ईएमएफ नोट करो, वही होगा, उसका वोल्टेज नोट करो, वही होगा ईएमएफ। आगे जाके तुमको पता चलेगा ये, डोंट वरी। दैट मीन्स अगर
एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज 1.1 वोल्ट हो इन केस ऑफ डेनियल सेल, दैट मीन्स सेल विल नॉट वर्क एंड सेल रिएक्शंस विल बी स्टॉप, राइट। अगर एक्सटर्नल बैटरी बहुत ज़्यादा हो गए तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स पोटेंशियल रिवर्स हो जाएगा, एंड जो सेल हम गैल्वेनिक सेल मान रहे थे वो गैल्वेनिक सेल की तरह नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करके हम केमिकल रिएक्शंस इधर मतलब आकार किया जाएगा, राइट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू दैट टाइम या केमिकल एनर्जीज, राइट। ओके, नाउ इट इज टाइम टू नो हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ ए गैल्वेनिक सेल्स। दैट मीन्स जो हमने सेल बनाया है, क्योंकि ऐसा तो देखो ये तो एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये तो हम हर तारीख दैट मीन्स हर टाइम तो हम उसका सेल कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते ना कि हाँ इसमें एनोड है, ये कैथोड है, सॉल्ट ब्रिज लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ, नहीं। आईयूपीएसी ने सिंपल सी एक चीज़ हमको दिया है जिसको हम रिप्रेजेंटेशंस बोलते हैं, उसका कुछ नियम एंड रूल्स है। दैट मीन्स उसको हम फॉलो करेंगे, जिसको देख के ही पता चलेगा कि अच्छा ये जो गिवन सेल है कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, कहाँ सॉल्ट ब्रिज है, उसको ही हम एक टेबुलर फॉर्म पे, दैट मीन्स बहुत ही सिंपलेस्ट वर्जन में हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए सेल, और मोर स्पेसिफिकली इफ आई एम टेलिंग दैट वन, दैट इज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। Representation of a galvanic cell. Okay. सिंपल सी बात, क्या बताया था हमने कि एक बात याद रखना है, लोन, LONE, कीप इन माइंड दिस वर्ड। लोन मीन्स लेफ्ट ऑक्सीडेशन एंड नॉट नेगेटिव, राइट। इसमें जो होता है ना, ये वाला एक बार यूज़ किया जाता है जिसको फेज डिफरेंस को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, फेज डिफरेंस, और इसमें दो पैरेलल लाइन लिया जाता है जिसको सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, राइट, सॉल्ट ब्रिज। नो, और एक बात क्या, और इसको ना हम इस तरह से लिखेंगे ABC, वी रिमेंबर्ड ABC मीन्स ये फर्स्ट हम एनोड लिखेंगे, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लिखा जाएगा, ब्रिज, और उसके बाद कैथोड लिखा जाएगा, और उनमें अगर फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस इन द सेंस दैट अगर एक्वस में है, सॉलिड में है, गैस में है, तो उसको सेपरेट करने के लिए स्लैश यूज़ किया जाता है, और समटाइम्स आयन को सेपरेट करने के लिए कॉमा भी यूज़ किया जाता है, समझ रहे हो। ओके, यू विल गेट टू नो ग्रेजुअली, डोंट वरी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, जो हमने सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अभी भी सीखे, ताज़ा सीखे, वो क्या है, जो गैल्वेन हमारा डेनियल सेल है, प्यारा सा इक्वेशन है, क्या है, नेट सेल रिएक्शन, ये था ना, ZnS प्लस कॉपर 2 प्लस इक्वस टू गिव Zn2 प्लस इक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। नाउ लिसन, रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है, आपको ऑक्सीडेशन निकलना आना चाहिए। ये फ्री एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इधर +2 है, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, यू हैव टू बी आइडेंटिफाई दैट वन। सी यार, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। और इधर देखो, ये 7 से 2 है और ये 0 पे जा रहा है, दैट मीन 0 से 2 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो रिडक्शन हो रहा है, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात, हम क्या लिखेंगे, जो ABC ना, एनोड को फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज को, उसके बाद कैथोड को, बचनो, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा। जो Zn है ये है और ये है, राइट। Zn सॉलिड में है, फेज डिफरेंट है, तो उसको हम सेपरेट करने के लिए इसको स्लैश यूज़ किया जाता है, और Zn2 प्लस, और उसका फेस आपको लिखना है इधर, सपोज टू भी ये C1 मोलर है, और उसके बाद क्या लिखना है, सॉल्ट ब्रिज लिखना है, सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज, ये, राइट। उसके बाद देखो, ये 0 से 2 जा रहा है ऑक्सीडेशन, राइट, देन कॉपर 2 प्लस कहाँ जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। और ये वाला क्या होगा, सपोज टू बी ये C2 मोलर है, राइट। बेसिकली यू हैव टू बी रिमेंबर्ड वन पॉइंट ओवर हियर, दैट इज, एक बात याद रखना है आप लोगों को, क्या है कि इफ़ वी कैन नॉट मेक एन इलेक्ट्रोड, इफ वी कैन नॉट
make an electrode of a substance in inert electrode substance and inert electrode like platinum, graphite can be used. कहने का मतलब यह है, सपोज ऐसा कोई इलेक्ट्रोड है जिसका सपोज ऐसा कोई एलिमेंट्स लिया है जिसका हम इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते, उसको बनाने के लिए ना हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को एज ए रेफरेंस लेंगे, जिसको हम क्या कर लेंगे, मतलब एज ए रेफरेंस पॉइंट लेंगे, जैसे कि प्लेटिनम हो, ग्रेफाइट हो, हम इसको इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल वन रिएक्शंस हम इधर दे रहा है। फॉर एग्जांपल सपोज Zn2 सॉलिड है प्लस 2H प्लस है, जो ऑब्वियसली एक्वस है, और ये रिएक्शंस दे रहा है क्या, Zn2 प्लस एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट? ओके, सो हियर हाइड्रोजन गैस विल बी देयर, राइट? नाउ लिसन, हम Zn सॉलिड है, उसके लिए हम इसे इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, समझ रहे हो? और इसका सोल्यूशन इधर डालेंगे, जैसे कि कॉपर सल्फेट, सॉरी जिंक सल्फेट हो गया। बट हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रोड ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट, एंड H प्लस। सो इसलिए हम बोले कि इफ़ वी कैन नॉट मेक एन इलेक्ट्रोड ऑफ ए सब्सटेंस, एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज्ड, राइट? या so for that one, what do you have to do here? See, the first thing you have to be find out the oxidation number. Here 0 and here it is +2, here it is +1 and here it is 0, right? So from here to here what will happen actually? Tell me. Oxidation number increasing. Oxidation number increase बोले तो इधर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहा है, राइट? और इसमें जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा बताओ? हाँ, ये रिडक्शंस होगा। तो क्या लिखेंगे इधर हम? सेल रिप्रेजेंटेशंस को कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात, देखो, फर्स्ट हम एनोड को लिखेंगे। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है। देखो, तो Zn(S) और इसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करेंगे, और Zn2 प्लस एक्वस है। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगाओ, ठीक है? उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगाओ। सॉल्ट ब्रिज के बाद रिडक्शंस हो रहा है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको सेल रिप्रेजेंटेशंस में लिखने का ज़रूरत है ही नहीं, समझ रहे हो? तो इधर H प्लस एक्वस एंड H2 गैस। देखो बच्चों, इसको हम इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते, क्योंकि गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाओगे? ये पॉसिबल है ही नहीं। वो गैस का इलेक्ट्रोड ऐसे खड़ा रहेगा क्या? नहीं, वो तो रैंडम, दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर रिपल्शन इज वेरी मच हाई इन केस ऑफ गैसेस पार्टिकल्स, राइट? सो ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे, उसको, जिसको इलेक्ट्रोलाइट हम बना नहीं सकते ना, उसको सिंपल सी बात, उसके एंड में हम प्लेटिनम एज ए सॉलिड लिख देंगे। और एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, अगर किसी भी सेल रिप्रेजेंटेशंस में प्लेटिनम हो, मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेटिनम यूज़ किया जाता है, एक्सट्रीम राइट में अगर यूज़ किया जा रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स एक्सट्रीम राइट में अगर यूज़ किया जा रहा है तो वो रिडक्शंस है, क्योंकि इधर रिडक्शंस हो रहा है ना, दैट मीन्स इस पार्ट का रिडक्शंस हो रहा है, राइट? हाँ, ये अगर एक्सट्रीम राइट पे है तो क्या होगा? ऑब्वियसली उस चीज़ों में क्या हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। बी रिमेंबर्ड, ओके? आई एम गिविंग अनदर one example. Suppose this one is the one, number 2, right? Suppose auxiliary ion is chromate ion is there, that is Cr2O7 2 minus, which is obviously aqueous, plus Fe2 plus aqueous, which will give Cr3 plus aqueous plus Fe3 plus aqueous। इसको हम कैसे करेंगे? देखो, सिंपल सी बात, हाँ वही रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। इधर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6 है, इधर कितना है? +3 है, इधर कितना है? +2 है, इधर कितना है? +3 है, राइट? को किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग बोले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा, राइट? और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है?
हाँ, इधर से इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, नो इंक्रीज हो रहा है, राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट वेट, ऑक्सीडेशन नंबर इधर डिक्रीज हो रहा है, राइट, हाँ, और इधर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, सॉरी, रिडक्शन रिएक्शंस होगा, राइट। तो इसका अगर हम सेल रिप्रेजेंटेशंस लिखे तो ऐसे होगा, देखो, सिंपल सी बात, देखो इधर Fe2+ एंड Fe3+, क्या एक्वस का इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल है ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे, जैसे कि प्लेटिनम एक्सट्रीम राइट पे लिखेंगे। अगर एक्सट्रीम राइट पे लिख रहा हूँ तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस रिप्रेजेंट्स करेगा, समझ रहे हो, आई बात समझ में। देखो Fe2+, इसमें क्या हो रहा है, एक्वस, इसको हम ना कोमा सिंह से रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कभी कर सकते हैं। कैसे, देखो दोनों का सेम है ना, ऐसे Fe3+ ऐसा है, और उसके बाद Cr2O7 2- ये भी एक्वस है, और इसमें Cr3+, ये भी एक्वस है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लेटिनम लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्वस का इलेक्ट्रोड बनना पॉसिबल है ही नहीं, समझ रहे हो। दैट मीन्स हेयर वी कैन नॉट मेक इलेक्ट्रोड, राइट, वी कैन नॉट मेक इलेक्ट्रोड ऑफ हियर सेम, राइट। सो वही बात, देखो अगर किसी भी गिवन सेल रिप्रेजेंटेशंस में अगर बात समझ, अगर आपको क्या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर आप निकल नहीं रहा हो, मैं दिमाग से उड़ गए, तो क्या होगा, ये बात सिंपल से याद रखो। अगर प्लेटिनम क्या है, एक्सट्रीम राइट पे है, चलिए ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे है ना, हाँ लेफ्ट पे है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगा, ऑक्सीडेशन, और ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, राइट पे है, तो एज आई टोल्ड क्या होगा, रिडक्शन, ओके। ओके, आज हम इधर ही क्लास को वाइंड अप करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं ना हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या क्या सीखा, ज़्यादा कुछ तो नहीं सीखा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जाना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने जाना कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या होता है, उसका कितने टाइप्स होता है, जो दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक तो गैल्वेनिक सेल है और वोल्टाइक सेल बोलते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, द मेजर डिफरेंस इज दैट जो गैल्वेनिक सेल होता है उधर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, राइट। एंड जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें क्या होगा, उसमें लाइक एक्सटर्नल करंट सप्लाई करने से क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैरी आउट किया जाता है, राइट। उसके बाद हमने गैल्वेनिक सेल को बारीकी से पढ़ा, उसका जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो डेनियल सेल है। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, उसमें जिंक एंड एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शंस होता है। और उसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी कि फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल्स क्या होता है, और सिंपल सी बात क्या है उसमें एक्सटर्नल बैटरी का इफेक्ट क्या होता है जो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल वर्किंग करता है। तो और उसके बाद हमने सेल रिप्रेजेंटेशन सीखा। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा पार्ट है जिसको हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। एक तो गैल्वेनिक सेल, और एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, और कंडक्शंस एंड टाइट्रेशंस विल also there. It's a very big topic. Okay, thank you so much.